paying check or banking channel, and if it exceeds 2,000 rupees, the limit of 10,000 has been reduced to 2,000 to promote digital economy. What they've done, they have not brought any limit of cash holding, but they have curtailed the uses of cash. You cannot donate cash. If you have to donate cash, it has to be only up to 2,000. If you want to donate more than that, it has to be through check. Otherwise, you will not get this ATG benefit. Similar provision in 35 AD, if it is payment in cash which exceed 10,000 rupees, then you will not get 35 AD special deduction benefit in respect of capital expenditure. All of you know, revenue expenditure के लिए लॉ में प्रोविजन है 48(3) कैश पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है। इन्होंने पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी कैश में पेमेंट नहीं हो सकता, ये प्रोविजन लाया है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो somebody cannot buy goods in cash even now, बट मोटर कार कैश में खरीद सकता है, डेप्रिसिएशन फिर भी मिलेगा। अब वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर पेमेंट 10,000 से ज्यादा है और आपने कैश में खरीदा तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो दिस रेस्ट्रिक्शन of the kind of 43 has come in section 32 or 43(1) also, actual cost. That amount which has been paid in cash, if it exceeds 10,000 rupees, it shall be ignored while computing actual cost of the asset at all. So you will not get appreciation on that. Neither you will get special benefit of 35 AD. And another change which they have done is in 44 AD. Where they say this has already been announced by the Prime Minister and Finance Minister and also Revenue Secretary that कोई जिसका जो presumptive taxation में आता है 44 AD में और वो डिजिटल मोड से पेमेंट रिसीव करता है, चेक या पेटीएम या एनी अदर डिजिटल मोड, वॉलेट और एनीथिंग, उस पर presumptive taxation की रेट 8% से घटा के 6% चार्ज करेंगे। This scheme is applicable for the persons having turnover up to 2 crore. So suppose he has payment through banking channel to the extent of 1.5 crore and 20 lakh is in cash. So what they say, 1.5 crore पे तो हम 6% लगाएंगे, 20 लाख पे हम 8% की रेट लगाएंगे, and that is how we will calculate your profit. So to promote this, they have reduced the rate of presumptive taxation to 6% in respect of digital turnover. इवन 43 जो अभी लिमिट है उसको घटा के 10,000 कर दिया है। बाकी सारे प्रोविजन सेम है 43 में, लिमिट को घटा के 10,000 कर दिया है। माल खरीदने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते। नाउ दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। 269 ST, आपको मालूम है एक प्रोविजन है 269 SS और एक प्रोविजन है 269T। दोनों को हम लोग टैक्स प्रोफेशनल्स बहुत डेंजरस प्रोविजंस मानते हैं और उन दोनों के बीच में एक और नया प्रोविजन डाला है 269 ST। And what is this? 269 SS, all of you know, say that 20,000 से ज्यादा कोई कैश में लोन या एडवांस डिपॉजिट ले या रियल एस्टेट का कंसिडरेशन भी ले, तो जितना अमाउंट लिया है आपका प्रॉफिट उसमें 10% ही होगा, बट जितना अमाउंट लिया है उतनी पूरी पेनल्टी लगेगी। इक्वलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज देयर इन 269 SS. Penalty is levied in section 271 capital D for violation of 269 SS. But SS applies to loan deposits and loan advances and this real estate transactions. If there is some other transaction which is in cash, like you have sold your motor car, और वो गाड़ी कार मिला लगता है सब जगह, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट करती है वहाँ गाड़ी बेच के आ गए, कैश काउंट करा के 2,000 और 500 के नोट 10 लाख रुपए में गाड़ी बेची और आ गए और 10 लाख कैश रिसीव कर लिया। व्हाट दे से, गाड़ी आपने 20 लाख की खरीदी थी, अब आपकी वैल्यू 10 लाख रह गई, आपने 10 लाख रिसीव कर लिया, उसका तो जो ट्रांजेक्शन होगा डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा वो तो होगा, बट ये 10 लाख आपने कैश में रिसीव कर लिया, इसलिए आपके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी है।
That is the provision. They have come out with a very harsh provision to curb cash transactions. If there is any kind of transaction, इसमें कह रहे हैं 269 SS में तो एक लिस्ट है ट्रांजेक्शन कौन से आते हैं. ये बोलते हैं 269 SS की लिस्ट को छोड़ के कोई भी और ट्रांजेक्शन हो जिसमें आपने कैश रिसीव किया हो, कोई भी ट्रांजेक्शन, एनी काइंड ऑफ, आपको लोन है, डिपॉजिट है, उसको भूल जाइए. किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन आप कहें कि तो मैंने इस वजह से रिसीव किया, अब व्हाटएवर वर्ड इज रिसीव. कोई कहे मैं केवल कस्टोडियन हूं इसमें रिसीव किया, मेरी इनकम ही नहीं है. जैसे वी हैव मेंशन्ड द वर्ड रिसीव. You cannot receive cash from anyone beyond 3 lakh rupees. If you have done that, then this penalty is on whom? Payer or receiver? It is on receiver. And what care they have taken? Please see, कई लोग बोलेंगे कि साहब ऐसा करेंगे, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये बोल सकते हैं कि साहब 2.5 लाख की 2 रसीद कर लेंगे, 3 लाख से कम हो जाएगा, पेनल्टी भी लगेगी. So what they have said, 3 तरीके से इसको कवर किया. आपने 2.5 लाख की 2 रसीद बना ली, से काम नहीं चलेगा. What they have said, in a single day from the same person 3 लाख से ऊपर रिसीव किया है. अब आपने 10 रसीद बनाई है कि 2 की 1, 3 लाख से ऊपर है, प्रोविजन लगेगा, पेनल्टी लगेगी. सेकंड, आपने सेम डे रिसीव नहीं किया है, सेम पर्सन से भी रिसीव, आपने कहा कि एक बार तो उसका भाई आ गया सब देने, दूसरी बार उसका वाइफ आ गई देने, तीसरी बार उसका बेटा आया, अलग अलग पर्सन से रिसीव किया. ए कैटरर हु प्रोवाइडेड सर्विसेज इन ए मैरिज सेज कि साहब पैसा देने के लिए पहले अकाउंटेंट आया, फिर भाई आया, फिर वो आया, आई रिसीव फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, 2.5 लाख रुपए सबसे रिसीव किया. व्हाट दे से इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर 3 लाख से ज्यादा रिसीव किया कभी भी, चाहे अलग अलग लोगों से, चाहे कितने ही दिनों में, लेकिन ट्रांजैक्शन एक था और उसका अमाउंट 3 लाख से ज्यादा आपने कभी भी रिसीव किया, तो पूरा 3 लाख रुपए पेनल्टी. अभी तीसरी चीज और बाकी है. ये सोच रहे हैं कि इसमें भी कोई आदमी टैक्स प्लानिंग कर सकता है, तो एक तरीके से और लिख दिया इस लॉ को, यहां से भी नहीं बच जाए. ये बोलते हैं कि आप कहेंगे सब डिफरेंट ट्रांजेक्शन, कैटर को मैंने प्लेट का तो 2.5 लाख रुपए दिया था, और नैपकिन का 1 लाख रुपए दिया, और सब्जियों का 5 लाख रुपए दिया, और इसके वेटर्स का इतना रुपए दिया, तो दे आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन, आई हैव डिफरेंट बिल्स. व्हाट दे से, नो, दे से if it is relating to one event or relating to one occasion, then from the same person if you are receiving, all that has to be clubbed to see whether it is exceeding 3 lakh or not. So they have gone to that extent to which 269 SS had not gone, and the recipient, that's how. आपने गलती से, आपके पास ये लोग कह रहे थे होल्डिंग पर लिमिट आ जाएगी या बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स आ जाएगा, वो तो बहुत कम परसेंटेज में आता अगर आता तो. ये बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स से बहुत बड़ा रिपरकशन आया. इट इज मच सीवियर देन बीसीटीटी. बीसीटीटी तो 0.15% होता जैसा पहले था, ये 100% है. बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन की जगह जो आया है वो 100% है. क्यों? आपने कैश रख लिया आपके पास, किसी दिन काम आएगा. अब हर आदमी आपसे कैश रिसीव करने को मना करेगा कि सब 3 लाख से ज्यादा मैं नहीं देता, क्योंकि मैं लूंगा तो मेरे को पेनल्टी लग जाएगी. So you will be compelled not to keep cash, not to have cash, or to deposit it back. BCTT की जरूरत क्या है? BCTT के दादाजी लेके आ गए. This is what they have done. Now, in this section, of course, this section cannot apply to the government or banking company, और where the Department of Government, आपने गवर्नमेंट को 3 लाख से ज्यादा दिया और गवर्नमेंट पे पेनल्टी लगा रहे, स्टेट गवर्नमेंट पे ऐसा नहीं करेंगे. So that they have excluded, they have taken care to exclude all that. And now this is interesting. आपको मालूम होगा बजट भाषण में इन्होंने गांधी जी को कोट किया. It's very very important. Not only they have quoted, they have followed also. कह रहे सबके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो हम पॉलिटिकल पार्टी मतलब हमारे ऊपर भी लगाएंगे. And they have come with the concept, a new concept, electoral bonds. And in respect of section 13A relating to political parties, उसमें भी इन्होंने अमेंडमेंट किया है. पॉलिटिकल पार्टी को भी, जैसे इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बोला
कि टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो वो लोग चिल्लाएंगे कि सब एजुकेशन कॉलेज की एक दिन से लेट हो गई सब मेरी रिटर्न, तो आपने पूरी इतनी बड़ी सजा दे दी कि मेरा एग्जम्पशन खत्म कर दिया। तो ये बोलते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन हम हमारे ऊपर भी लगा रहे हैं। अगर बीजेपी ने भी अपनी रिटर्न एक दिन लेट करी तो उसका 30 डे का एग्जम्पशन खत्म होकर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। सो दे हैव अप्लाइड दिस ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। दैट इज वन गुड स्टेप where they say we'll first make it applicable to us, then to you. And then another thing which they have done, here also they have reduced the limit of donation from 10,000 to 2,000 to political parties. 2,000 से ज़्यादा political parties को donation cash में लेना allowed नहीं। Such a big thing has been done which could not have been thought. In India, electoral reforms have been taught. There have been many commissions which were set up. We don't have a recent commission which was set up has said that there cannot be state funding of the elections. You know, in US, there is a concept of partial state funding of elections. And that concept is, when you file your return to IRS, IRS means the Internal Revenue Service, Inland Revenue Service of the United States. When you file their tax return, there is a column there. Would you like to contribute $3 to the electoral fund? And that kind of course, Obama has banned that law. But there was a concept of funding by all taxpayers. And $3 कोई भी आदमी दे देता है, इतना टैक्स, इतना रिटर्न, इतना भरा, $3 और लग रहा है।